Hi, welcome back. Now let's talk about carboxylic acids. Carboxylic acid, actually it's a combination of two functional group. There is one carbonyl group present, CO group, and there is one OH group present, that is alcohol group or hydroxylic group. तो carbonyl group का कार्ब और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सिलिक, जब दोनों को कंबाइन किया तो नेम बना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब सिमिलर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है सिमिलर टू अल्कोहल, तो इज इट सो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, द प्रॉपर्टीज ऑफ COOH ग्रुप should not be they similar to aldehyde, ketone and alcohol? कुछ प्रॉपर्टी अल्कोहल से, कुछ प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन से, मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड से मैच करनी चाहिए। But reality ये है that most of the properties of the carboxylic acid are different from aldehyde, ketone and alcohol. ऐसा क्यों है? That's the examination reasoning question also. Why the properties of carboxylic acid are different from aldehyde, ketone and alcohol, even after the presence of carbonyl group and hydroxylic group. Question ध्यान से सुना आपने, मैंने क्या बोला? Why the properties of carboxylic acid are different from aldehyde, ketone and alcohol even after the presence of carbonyl group and hydroxylic group both? इसका रीजन हमें मिलता है रेजोनेंस में। सी, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन एटम हैज टू लोन पेयर्स। यहां कॉन्जुगेशन हो गया, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, so there will be resonance. Lone pair will shift one position and double bond will shift one position. ये डबल बॉन्ड एक पोजीशन शिफ्ट हो गया। जब ये डबल बॉन्ड एक पोजीशन शिफ्ट हो गया तो यहां ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, and this lone pair has shifted one position, so this will become double bond, and here it will get positive charge. And repeat, negative single double, negative will shift one position, double bond will shift one position, and because of this resonance in the carbonyl and hydroxylic group, both the groups are not behaving individual independent groups. तो यहां पे ये रेजोनेंस शो करके, रेजोनेंस शो करने के बाद हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, resonance in carboxylic acid is present, resonance in carboxylic acid is present between carbonyl and hydroxylic group, between carbonyl and hydroxylic group, hence it does not show the individual characteristics of carbonyl group or hydroxylic group. Okay, so that's the introduction of the structure of the carboxylic acid. Further, one very common type of carboxylic acid we deal, especially the naturally occurring substances, that is the एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है तो हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर ओपन चेन से अटैच है तो उसको बोलेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक। अंडर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देयर इज वन स्पेशल कैटेगरी कॉल्ड फैटी एसिड। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब ओपन चेन से अटैच होता है, ठीक है, दिस इज लाइक 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कार्बन, and COOH. This is C18, H36, O2. This is stearic acid.
तो ऐसे जो ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें 12 to 18 कार्बन एटम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फैटी एसिड. Why they are called as fatty acid? ध्यान से सुनना. Actually, these carboxylic acid, these fatty acids, are not found in free state in the nature. हमें डायरेक्टली फैटी एसिड नेचर में नहीं मिलते. हाँ, नेचुरल कंपाउंड से हम फैटी एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं. Why they are being called as the fatty acid? So the idea is, एक्चुअली क्या होता है, ये देखो, सपोज ये एक फैटी एसिड है, सपोज ये स्टेरिक एसिड है और टोटल इसमें 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट, और ये एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है विच इज ग्लिसरॉल. ठीक है. तो जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड से कंबाइन होता है तो यहां से H और ये OH, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, माइनस H2 हो जाता है एंड दे कंबाइन टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट. मतलब ग्लिसरॉल में 3 एस्टर ग्रुप आ गए, COO, COO, COO. ध्यान से देखो, ये यहां तक का पार्ट कहां से आया? ग्लिसरॉल से. जब आपने हाइड्रोजन हटाया तो ये वाला पार्ट आया. ठीक है. और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाया, फैटी एसिड से OH हटाया, तो ये वाला पार्ट आया. तो जब ये पार्ट कंबाइन हो गए तो एक ट्राई एस्टर बन गया. इसको मैं बोल सकता हूं ग्लिसराइल ट्राई एस्टर, ग्लिसराइल ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड. Glyceryl triester of fatty acids, these are the natural fats and oils. तो हमें नेचर में डायरेक्ट फैटी एसिड नहीं मिलता, हमें नेचर में मिलता है ग्लिसराइल ट्राइएस्टर ऑफ फैटी एसिड विच आर कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स. और जब हम इन ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, इन्हें वाटर से रिएक्ट करते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं, तो हमें फैटी एसिड मिलता है. ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले समझो, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओपन चेन से अटैच है, किससे अटैच है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओपन चेन से अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर ओपन चेन में 12 to 18 कार्बन है तो ऐसे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलेंगे? फैटी एसिड. फैटी एसिड्स हैविंग 12 to 18 कार्बन एटम in a straight carbon chain are called as fatty acid. समझ में आया? Now, fatty acids are not found in the nature in the free state. Fatty acids are found in the form of triglycerides. मतलब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में. तो जितने भी हमारा एनिमल फैट है या वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वो सब यही है. उनमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते रहते हैं, राइट? या कार्बन की ब्रांचिंग चेंज होती रहती है, या उसमें बॉन्डिंग चेंज होती रहती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बॉन्ड. बट ऑल द फैट्स एंड ऑयल्स आर अल्टीमेटली हैविंग दिस स्ट्रक्चर. और इस ट्राइग्लिसराइड का मतलब नेचुरल फैट एंड ऑयल का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो. ट्राइग्लिसराइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ओके, सो दिस इज स्ट्रक्चर इज रॉन्ग. यहां पे वी शुड हैव एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, सो हम ड्रॉ कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे CH2O C डबल बॉन्ड OR, CHO C डबल बॉन्ड OR, CH2O C डबल बॉन्ड OR. ये ट्राइग्लिसराइड्स. और इन ट्राइग्लिसराइड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा? HOH.
यहाँ अटैच हो जाएगा H, यहाँ अटैच हो जाएगा OH, देन अगेन H OH, देन अगेन H and OH, हमें मिलता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. Okay, so fatty acids are not found in the free state in the nature. They are obtained by the hydrolysis of the triglycerides. ये single word होना चाहिए, triglycerides. Understood? Okay. Now structure of carboxylic acid. तो carboxylic acid में कार्बन में होता है sp2 hybridization. Due to sp2 hybridization, it has a triangular planar geometry and the bond angle will be approximately 120 degree. Resonance we have already discussed, lone pair, single bond, double bond. So this lone pair shifts one position, double bond shift one position. तो इस ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, इस ऑक्सीजन पे आएगा प्लस. Then negative will shift one position, double bond will shift one position. So we get a partial double bond characters. ये जो second line है ये partial double bond है. Okay, so I should actually, this should be R C O O H and this is partial double. So this is the resonance and pi electron is delocalized. Structure is not much important. Carbon का hybridization sp2 है, geometry trigonal planar है. Now next is the nomenclature. So most of the carboxylic acids, their common names have come from their source. जैसे ये जो acid है, one carbon acid, that is the red ant poison. Red ant को बोलते हैं फॉर्माइका, और फॉर्माइका क्या पॉइजन, रेड एंट का जो पॉइजन होता है जिसके बाइट करने से हमें रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, तो वो रैशेस क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड, और ये फॉर्माइका के अंदर मिलता है, इसलिए इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड. ओके, 2 कार्बन एसिड, दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द विनेगर. आई वुडंट से दिस प्योर कंपाउंड इज विनेगर, राइट. इसका जो 5 to 6% एक्वियस सॉल्यूशन होता है, या हम कह सकते हैं कि विनेगर के अंदर 5 to 6% कॉन्सेंट्रेशन होती है एसिटिक एसिड की, एक्वियस सॉल्यूशन. तो एसिटिक CH3COOH का 5 to 6% एक्वियस सॉल्यूशन को बोलते हैं विनेगर. विनेगर को ग्रीक में बोलते हैं एसिटम, तो ये हो गया एसिटिक एसिड. ओके, 3 कार्बन, दैट इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड. फर्स्ट का मतलब प्रोटॉन, ऑब्टेन का मतलब पियोन. फर्स्ट ऑब्टेन्ड प्रोटॉन पियोन, so that will become propionic acid. Propionic acid, right? 4 carbon acid, rancid butter. बटर के स्पॉइल होने के बाद, बटर के खराब होने के बाद उसके पास एक वाटरी सब्सटेंस कलेक्ट हो जाता है. वो वाटरी सब्सटेंस होता है 4 कार्बन वाला एसिड. तो बटर के, रेंसिड बटर से मिला, नॉट इन द नॉर्मल बटर, बटर के खराब होने के बाद, बटर के स्पॉइल होने के बाद उसमें जो वाटरी सब्सटेंस कलेक्ट होता है उसमें 4 कार्बन वाला एसिड होता है. रेंसिड बटर से मिला, वी कॉल इट एज ब्यूटायरिक एसिड, राइट. 5 कार्बन वाला एसिड वैलेरियन प्लांट की रूट से मिलता है. वैलेरियन प्लांट की रूट से मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं वैलेरिक एसिड. ओके, एंड बेंजीन के साथ जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, इट्स कॉमन नेम इज गिवन एज द बेंजोइक एसिड. IUPAC name you know, like simply you need to put the oic suffix, so that's not much important. ये तो आपको already 11th standard से बहुत properly आता है. Formic acid, acetic acid, propane, prop 3 carbon, single bond in oic acid, propanoic acid, butanoic acid, pentanoic acid. Okay, and 6 carbon acid is obtained from the goat skin. गोट की स्किन से मिलता है. गोट इन ग्रीक इज कॉल्ड कैपर, तो दैट इज कॉल्ड एज द कैप्रोइक एसिड. ओके, एंड IUPAC नेम विल बी हेक्सेनोइक एसिड. ओके, नाउ सम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. बेंजोइक एसिड में जब हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है एट ऑर्थो पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड. ओके, 2 carboxylic group at ortho position, right? We'll call it as the phthalic acid. Meta position, isothalic acid. Para positions,
टेरेप्थेलिक एसिड, राइट। ये स्ट्रक्चर्स में थोड़ा टाइपिंग एरर है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक्चुअली ये इस बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए, COOH। तो वो टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा जस्ट करेक्ट कर लेना। ये you cannot write it like this, it should be written as COOH। benzene ring is attached to carbon, it should be COOH। वो प्रिंटिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है। now this is very important acid, this is called cinnamic acid। IUPAC नेम, IUPAC नेम में हमने बेंजोइक एसिड को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक बात याद रखना, जहां पे भी हम बेंजोइक एसिड लिखते हैं वो एक्चुअली कॉमन नेम है, और उसकी जगह पे हम प्रॉपर आईयूपैक नेम यानी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। तो जहां पे भी बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है वहां पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक्सेप्टेबल है। तो उसको कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। बेंजीन प्रिंसिपल कार्बन चेन, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखो, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट होता है, जैसे हमने यहां पे काउंट किया इन ऑल दीज कंडीशंस, तब हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट नहीं हो सकता, तब हम यूज करते हैं सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पे हम ओइक एसिड यूज नहीं करेंगे बिकॉज दिस कैन नॉट कम इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो हम इसकी जगह कहेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे इसको हम बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नाउ तो बेंजीन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हियर 1 2 3 कार्बन, थर्ड कार्बन से ब्रांच है बेंजीन रिंग विच इज कॉल्ड फिनाइल। तो 3 फिनाइल, प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है, प्रॉप सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 इनोइक एसिड, 3 phenyl prop 2 enoic acid। Now let's talk about some uh, uh, homologous series of the dicarboxylic acid। homologous series क्या होती है? जब फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स में सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, तब हम उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, बीच में हमने यहां पे एक CH2 ग्रुप लगा दिया दिस, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मैलोनिक एसिड, राइट। उसके बाद में हमने एक और CH2 ग्रुप अटैच कर दिया, पहले सिर्फ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑक्सैलिक एसिड, फिर बीच में एक CH2 ग्रुप लगा दिया तो मैलोनिक एसिड, फिर एक CH2 ग्रुप और नया ऐड कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एज सक्सिनिक एसिड, देन वन मोर CH2 ग्रुप अटैच्ड, then it is called as glutaric acid, one more CH2 group attached, then it is called as adipic acid। oxalic, malonic, succinic, glutaric and adipic acid, right। IUPAC name 1 and 2, 2 कार्बन इथेन और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो डाइओइक एसिड, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, दिस शुड बी ब्यूटेन 1 4 dioic acid, this is 1 2 3 4 5 pentane 1 5 dioic acid, there are 6 carbon atoms, hexane 1 6 dioic acid।
Now let's talk about some other important organic acids, right? जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह यूज करते रहते हैं, जैसे टार्ट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलाइक एसिड। ये चारों एसिड हम स्टीरियो केमिस्ट्री में यूज करते हैं। इन दोनों को यूज करते हैं फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इन्हें यूज करते हैं फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो 4 कार्बन की चेन है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन कार्बोक्सिलिक है और सेकंड और थर्ड कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, देन इट इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड। ओके, फर्स्ट कार्बन कार्बोक्सिलिक, सेकंड पे OH और थर्ड पे मिथाइल, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। अब ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्ड सी, ओके, COOH, 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 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, COOH। Now if you give the IUPAC name, दोनों की केसेस में 4 कार्बन है, ब्यूट। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है 2 इन 1,4-डायोइक एसिड। तो दोनों का IUPAC नेम सेम है, लेकिन यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड है, इसका मतलब ये हो जाएगा सिस आइसोमर, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑपोजिट साइड है तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। इसका कॉमन नेम होता है मैलाइक एसिड और इसका कॉमन नेम होता है फ्यूमेरिक एसिड। सिंपल आइडिया, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिले हुए हैं, मतलब एक ही साइड पे हैं, मिले हुए हैं मैलाइक एसिड, टर्न हो गए, फिर गए, फिर गए तो फ्यूमेरिक एसिड, टर्न हो गए, ठीक है। तो मिले हुए हैं तो मैलाइक एसिड और फिर गए तो फ्यूमेरिक एसिड। सो दिस आर द डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, right? So that is about the introduction and nomenclature of carboxylic acid. Most of this portion was already covered in the previous chapters or during the common name system, so there was nothing much new on that. So you should just revise these things very quickly. इसको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, but yes, all the structures discussed in this particular section of lecture are very very important. आपको lactic acid, tartaric acid, maleic acid, fumaric acid, oxalic, malonic, succinic, इन सभी एसिड्स की स्ट्रक्चर प्रॉपरली आनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बट मोस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ड्यूरिंग द कॉमन नेम सिस्टम और द रेजोनेंस पॉइंट, ठीक है। इसलिए ये काइंड ऑफ आपके लिए प्रीवियस टॉपिक्स का रिवीजन था। लेकिन किसी ने अगर प्रीवियस टॉपिक्स के साथ इस पोर्शन को प्रॉपर नहीं किया था तो प्लीज अभी इसको कर लो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, द इंट्रोडक्शन एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने भी कॉमन नेम्स इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने कंप्लीट किए हैं, all these common names are very very important, right? Hope you enjoyed.